Okay, so in previous class we did some basic stuffs of APIs. We saw how to create APIs and we focused on how to create multiple types of GET requests, like based on their response type. So initially we tried for string, then int, then we tried the whole object. That's how it looks like on browser. If you're creating any API and specifically the get request, which does not takes any body with the request, so you can request that API on your browser because you're not supposed to pass any body with that request. So this was about the object. When you are returning it or as a response you want to return an object, so that's how it looks like. And we are when you are returning an collection, it goes in a square brackets, and since it's a string type, so every single element goes in double quotes. Okay, so this is what we saw. And then we saw when what happens when user trying to save something, like wants to send some body with the request. So client needs to switch to post request type. So client will say, okay, I want to save student, and this is my request which has ID and name. The server will take that request, process it, and it checks, okay, the request has a body. So, and the request type is post. So we are expecting body with the request. So what does Spring Boot will do? It will transform your JSON into a Java class, or more precisely, it maps your keys of your JSON into class fields. So हो क्या रहा है, जो भी आईडी या नेम एज अ की पास कर रहे हो आप जेसॉन ऑब्जेक्ट में, वो मैप हो जाएगा जावा के क्लास के साथ. द कंडीशन वाज कि ये क्लास आपको बनानी पड़ेगी. एंड ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा. व्हेन यू आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, सो वी वर्क इन अ टीम. सो टीम में कुछ लोग यूआई पे काम, कुछ लोग बैकएंड में काम करते हो. अगर इफ समवन एल्स इज वर्किंग ऑन यूआई साइड, सो दैट पर्सन विल शेयर whole request type की ऐसा request आएगा. So create one class. Even that client will also create one Java class. अगर think about, if that person is working on let's say an Android app, अगर कोई Android app पे काम करता है तो Android is all about Java, तो वो भी अपने एंड पे एक Java क्लास बनाएगा ताकि वो Java क्लास सेंड करे रिक्वेस्ट पे के साथ, और रिक्वेस्ट में वो जो डेटा है वो कन्वर्ट हो जाएगा JSON में, फिर यहाँ पे आएगा, फिर वापस बैकएंड उसको कन्वर्ट कर लेगा जावा क्लास पे, फिर बाकी प्रोसेस करेगा. सो दैट्स व्हाट वी सॉ इन आवर प्रीवियस क्लास कि अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट पे हमें ये बताना पड़ेगा स्प्रिंग बूट को कि सी दिस इज पोस्ट रिक्वेस्ट एंड दिस इज सपोज टू कम विद द request body or in a request body. So map all those keys into your Java fields, Java class fields, and we tried that. We are able to get the request. So this was still post request. So we missed this screen. Let's add it. So this is what you send, and issue is you cannot test this in your browser. So we need something like this in the Postman. So मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है, तो कुछ पुराने रिक्वेस्ट ट्राई कर लेते हैं लोकल होस्ट वाले. लोकल होस्ट कॉलन 8080 स्लैश, अगर मैं रूट पे ट्राई करूँ, दिस इज द रिस्पॉन्स, राइट, हेलो फ्रॉम एस पी ऐप, लाइकवाइज, सो वेलकम, देयर वाज एन एंड पॉइंट एज, रिटर्न कर रहा है student. This is supposed to return object, this object. And if I return request subjects, so this is a collection. Now this was about whole stuff, so let me save it. Okay, so कैसे collection बनाते हैं, that's what I'm telling you. So मेरी request है subject, मुझे इसको save करना है collection पे. So save as, यहाँ पे already मेरे पास collection बने हुए हैं, तो मैं bottom पर जाऊँगा, new collection create करूँगा, तो यहाँ पे एक text field आ जाएगा. I'll call this basic API, basic API collection. कुछ भी नाम दे दो, टोटली अप टू यू, कैसे आपको रेफर कर सकते हो. ओके, एंड क्रिएट, क्रिएट हो गई. अब आप देखोगे पाथ क्या बन गया. माइक्रोसॉफ्ट पे जा रहा है ये, जस्ट सेकेंड ना.
टेस्ट कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली इसमें क्यों सेव हो रहा है, ये इसी में जाएगा क्या? यस। ठीक है, मे बी मैंने कुछ एक रूट पे बनाया होगा, मैंने काफ़ी पहले बनाया तो याद नहीं आ रहा। और अगर आपको डिलीट करना है कोई कलेक्शन तो ये एक टेस्टिंग बनाया था, 3 डॉट्स पर जाओ और डिलीट। डन। ओके, इसको सेव करते हैं। सो सेम, सेव एज, अपने जो भी आपने कलेक्शन बनाया इसको क्लिक करो और यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हो रिक्वेस्ट का, ताकि थोड़ा सा अलग लगे। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, गेट रिक्वेस्ट गेट और सब्जेक्ट्स एंड देन सेव। तो ये इसको सेव कर दे, हालांकि दिखाएगा ग्रीन कलर में कि रिक्वेस्ट गेट टाइप के, पर स्टिल मैं इसको ऐसे सेव करता हूँ। टोटली अप टू यू कि कैसे आप सेव करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे वो विजिबल होगा जो भी आप नाम लिखोगे। तो ये आपके कलेक्शन का नाम और फिर आपके एंड पॉइंट का नाम। इसी तरह जो बाकी एंड पॉइंट है वो सेव कर सकते हो। स्टूडेंट सेंड, ये आ गया। सेव एज, सेव करोगे तो क्या होगा कि पुराने वाले को ओवरराइट कर देता है ये। आई डोंट नो, ये बग है कुछ। तो जब भी आपको कुछ करना है, एक काम कर सकते हो, आपकी पूरे रिक्वेस्ट को डुप्लीकेट कर लो। देखो डुप्लीकेट कैसे करते हैं, राइट क्लिक ऑन द टैब एंड देन यू कैन डुप्लीकेट इट। तो जैसा रिक्वेस्ट पहला था ऐसा मिल जाएगा। तो अगर आप डुप्लीकेट करते हो तो मेक श्योर यू आर सेइंग सेव एज। सेव करोगे तो क्या होगा, ये तो सेव होगा होगा, पिछला वाला भी ओवरराइट हो जाएगा। तो फॉर मी इट्स लाइक अ बग। तो कभी भी सेव मत क्लिक करना, हमेशा प्रैक्टिस में डालो कि अगर आप पोस्टमैन में काम कर रहे हो और किसी एपीआई को सेव करना है, सो मेक श्योर यू आर क्रिएटिंग सेव एज। ये एक ऐसा बग है जो जब आप काम करोगे तब मिलेगा। तो मैं आपको ऑलरेडी एडवांस में समझा रहा हूँ कि हमेशा सेव पे क्लिक करना। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट सेव, ठीक है। और इसको भी ओवरराइट कर लेते हैं, नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कलेक्शन। कलेक्शंस, सब्जेक्ट कलेक्शंस, ठीक है। कुछ भी नाम देते हो जो समझ में आए। ओके, नाउ लेट्स ट्राई पोस्ट। वी ऑलरेडी टेस्ट दिस यस्टरडे, सो फिर से ट्राई कर लेते हैं। ये एंड पॉइंट, नाउ वी हैव टू पास अ बॉडी। इट इज सपोज टू टेक अ बॉडी, राइट? सो बॉडी क्लिक करा, रॉ जेसॉन, एंड यू आर पासिंग वन ऑब्जेक्ट। सो कीज क्या है, एज पर माई जावा क्लास। अगर मैं जावा क्लास की बात करूँ, सो दिस फंक्शन IDs प्लस and names आईडी है। एंड नेम, राइट? तो यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा। तो फर्स्ट की इज आईडी, और आईडी कुछ भी हो सकती है, देन कॉमा, देन नेम। नेम, देन कॉमा, देन डबल कोट्स, एटसेट्रा, डन। और अगर फॉर्मेटिंग किसी वजह से गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो यहाँ एक बटन है ब्यूटीफाई, क्लिक कर दो, सब फॉर्मेट कर देगा। मतलब फॉर्मेटिंग का तरीका है। एंड देन ट्राई टू सेंड द रिक्वेस्ट एंड इट्स मेथड नॉट अलाउड, बिकॉज ये स्टूडेंट नहीं है, कुछ और होगा। स्टूडेंट DTO है। नहीं, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऐसे है। ओके, सेंड करा और ये आ गया। क्योंकि ये स्ट्रिंग में रिटर्न कर रहे हैं इसलिए ऐसा आ रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप। ठीक है, ये भी डन हो गया। तो ये तक हमने कुछ रिवीजन कर लिया, प्लस वी हैव सेव लर्नड एज। हाउ टू सेव, सेव एज पोस्ट एंड देन क्रिएट वन स्टूडेंट एंड सेव। गेट पोस्ट लिख रखा है मैंने, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी ये सजेस्ट करता है कि ये गेट रिक्वेस्ट है, ये गेट है, ये पोस्ट है। कलर्स भी डिफरेंट होते हैं ताकि दिख भी जाए। ग्रीन कलर से आपको दिख जाएगा, मतलब ग्रीन है। गेट से कभी भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला आपके सर्वर को। दैट्स व्हाई आई वांट टू नो फ्रॉम योर गाइस, फ्रॉम योर साइड गाइस, कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट। तो देखिए आइएगा, पढ़िए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू रिक्वेस्ट पुट टाइप। अगर मुझे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैं अभी फिर से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और पोस्ट की जगह पुट कर देते हैं, पुट। अब आप बोलोगे कि इसकी सर नाम चेंज कर दो, मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो फिर ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आपका एंड पॉइंट सेव रहेगा। मेथड का नाम तो चेंज करना पड़ेगा बिकॉज जैसे कोड जावा थिंग, तो वो तो डिफरेंट रहेंगे। बट इफ़ यू हैव नोटिस, यहाँ पे स्टूडेंट्स है, यहाँ भी स्टूडेंट्स है, राइट? एंड पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। मैंने कहा यहाँ पे स्टूडेंट लिखा था, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स ही रखो, ठीक है। चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर मैं, गेट ओके, पुट
रिकॉर्ड मैपिंग हो गया. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, अपडेट. थिंक अबाउट, अगर आप अपडेट करो रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड तो कोई भी अपडेट हो सकता है, राइट? इट कुड बी एनी रिकॉर्ड. वो आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है. दैट मीन्स यू आर सपोज टू पास द होल ऑब्जेक्ट अगेन. और जैसा आपका रिक्वेस्ट होगा उसके बेस पर रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा. तो ये मे भी अभी समझना है, बट डोंट वरी. अभी हम समझ रहे हैं कि हाउ टू यूज दिस एंड पॉइंट्स. तो मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट करता हूँ क्योंकि मुझे बॉडी भी चाहिए, और पोस्ट से इसको पुट कर लेता हूँ. एंड देन बॉडी आ गया, आ गया. लेट्स चेंज इट. हम कर देते हैं इसको. ठीक है, डन. दिस इज ऑल्सो डन. नाउ लेट्स सेंड द रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट सेंड. और अभी सर्वर मैंने रिस्टार्ट नहीं किया, इसलिए चेंज आ रहा है. तो सबको सेम रहेगा. व्हाट आई जस्ट डिड, इफ यू हैव नोटिस्ड, मैंने बस एक एंड पॉइंट चेंज करा. सॉरी, नॉट इवन एंड पॉइंट, द एचटीटीपी वर्ब चेंज किया मैंने. एंड देन आई चेंज द मेथड नेम. एवरीथिंग इज सेम. तो जैसा आपका पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, ऑलमोस्ट उसका रेप्लिका होगा पुट. द डिफरेंस इज, पोस्ट इज क्रिएटिंग रिक्वेस्ट इन योर डेटाबेस, पुट इज अपडेटिंग रिक्वेस्ट इन अपडेट डेटा इन द डेटाबेस. तो ये स्लाइड डिफरेंस है, उसके हिसाब से हम कोड चेंज करेंगे, बट फॉर नाउ थिंग्स आर सेम. तो इसको फटाफट से हम इसको रिलोड कर लेते हैं, चेंजेस दिख जाए. एंड देन वी विल गो फॉर डिलीट. अभी तक मैंने कोई भी ऐसा नया चीज़ नहीं दिखाया जो आप लोग को नहीं पता. बस मैं एंड पॉइंट चेंज कर रहा हूँ. इवन एस टी वर्ब्स, नॉट इवन एंड पॉइंट, वो सेम रखा हुआ है. मैंने स्टूडेंट्स रखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट रखा हुआ है. मैं गेट कर रहा हूँ तो भी स्टूडेंट्स है. सेव कर रहा हूँ या अपडेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स ही है. तो एंड पॉइंट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही जाते हैं. ठीक है, दैट्स अ वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस. पर ये एक बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको ये फॉलो करोगे तभी आप एक एंड पॉइंट बना पाओगे. आप यहाँ पे एबीसी लिख दो तो भी चल जाएगा, पर हमेशा जब एंड पॉइंट लिखता है प्लूरल में जाता है, स्टूडेंट्स. ठीक है, तो डन. पुट रिक्वेस्ट एरी, रिक्वेस्ट सेंड करा, एंड इट्स वर्किंग. सेम नेम आ गया यहाँ पर. तो मैंने, व्हाट वाज द आइडिया, कि इनिशियली जब मैंने रिक्वेस्ट डेटाबेस में सेव करा, सो इट वाज सपोज टू गो वन एंड राम. बाद में चेंज किया मैंने. तो आईडी चेंज नहीं होती गाइस, इतना ध्यान रखना. आईडीज हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं. आईडी आईडीज आर सपोज टू आइडेंटिकल. ये एक प्राइमरी की है, अगर आपको डेटाबेस याद हो तो. प्राइमरी की है ये, इसको कभी चेंज नहीं करोगे. कभी ये मत बोलना कि सर मेरे को तो आईडी चेंज करनी है. अरे भैया, ऐसा नहीं करते, कोई नहीं करता. नोबडी डू दैट. प्राइमरी की चेंज करते हो फिर तो आप तो कुछ भी कर लो कोड में. दीज आर प्राइमरी कीज, दीज आर नॉट सपोज टू चेंज. बाकी आप बाकी चेंज कर लो, जैसे रिकॉर्ड है यहाँ पर. नेम चेंज करो, बाकी और भी फील्ड्स हम फ्यूचर में ऐड करेंगे. नेम, एज, ईमेल और प्रोफाइल पिक्स, पीडीएफ, बहुत कुछ ऐड करने वाले हैं. तो वो सब चेंज कर लो, बट आइडिया सपोज टू रिटेन देयर. और ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है, तो उसको सेव भी कर लेते हैं, सेव एज अगेन. और इसको मैं कर देता हूँ पुट. यहाँ पे होगा अपडेट वन स्टूडेंट और सेव. ठीक है, ये रिक्वेस्ट भी सेव हो गया. बढ़िया. लास्ट इज डिलीट. अगर इतना काम कर दिया, CRUD ऑपरेशन में लास्ट पार्ट है कि जब सारा काम कर लिया, एंड मे बी इन फ्यूचर यू वांट टू डिलीट समथिंग, सो डिलीट भी कर लेते हैं. डिलीट मैपिंग, इसके लिए ये एनिटेशन है. एंड अगेन एंड पॉइंट स्टूडेंट्स ही रहेगा. मैं यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर देता हूँ, डिलीट स्टूडेंट. अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या यहाँ पे बॉडी जरूरत है. डिलीट के संग रिक्वेस्ट बॉडी नहीं जाती. ठीक है, वी डोंट डू दैट. फिर डिलीट किस बेस पे करोगे, राइट? थिंक अबाउट, अगर हमें कुछ रिकॉर्ड डेटाबेस से सेलेक्ट करना है. मैसेज ओपन किया मैंने, नहीं किया. थिंक अबाउट, अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डेटाबेस से सेव करना है, सेलेक्ट करना है, तो हाउ डू वी फेच द रिकॉर्ड्स? कोई बताओ. सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ हम्म. से डेटा वो सेलेक्ट करना है. और वेयर आईडी दे सकते हैं सर. लेट्स सेलेक्ट स्टार. राइट, मैं आईडी दे सकता हूँ. ये मुझे सुनना था कि ये सर. मतलब हम आईडी बेस पर रिकॉर्ड्स निकालते हैं. जैसे यहाँ पे रिकॉर्ड लिखा हुआ है, सिलेक्ट रिकॉर्ड विद आईडी 5. ये मैं शायद आप लोग को बताया था मैंने, है ना? हाँ, इसी का कमेंट्स कमेंट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ देख लो. तो मैंने एक रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ बुक से, और जहाँ पे लिखा है वेयर आईडी इक्वल्स टू 5, है ना? तो मैंने स्पेसिफाई करा है कि मेरे को ये ही रिकॉर्ड चाहिए. ये लाइन 6 पर लिखा हुआ है. गाइस, इफ यू नोटिस एट द बॉटम, मैं ये कर रहा हूँ डिलीट. डिलीट सेवेंथ रिकॉर्ड. सो व्हाट आई एम सेइंग, डिलीट फ्रॉम बुक टेबल वेयर आईडी इक्वल्स टू 7. अगर मैंने ये नहीं लिखा गाइस, तो क्या होगा? एनीवन, एनी पूरा गेस? डिलीट. आई हाँ, थिंक सर पूरा डिलीट. पूरा डिलीट हो जाएगा, टेबल खाली. अरे तो फिर तो नुकसान हो गया ना.
यस इतने सर। मेहनत से आपने 1000 2000 रिकॉर्ड डाले और आपने गलती से कमांड चला दी। इसलिए ये रिक्वेस्ट सेफ नहीं होती है जो डेटाबेस पे मैनिपुलेट करे। इसी वजह से जो अगर आप देखोगे तो गेट ग्रीन है, बाकी पोस्ट ब्लू है, सॉरी येलो है, पुट ब्लू है, डिलीट तो रेड में आ जाएगा। तो ये सारे रिक्वेस्ट अनहेल्दी रिक्वेस्ट एक तरह से। तो इसलिए गेट रिक्वेस्ट आर मोस्ट सेफ रिक्वेस्ट, वहाँ पे आप डेटाबेस पे कोई मैनिपुलेशन नहीं करते हो। यू आर जस्ट सपोज टू फेच रिकॉर्ड्स। बस आपको डेटा रिट्रीव करना है, रीड ओनली रिक्वेस्ट है ना। पुट पोस्ट डिलीट ये सारे के सारे डेटाबेस को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं। सो वी हैव टू वेरी केयरफुल कि क्या रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो आप। तो डिलीट सर करते टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा। बोलिए। सर जब हम मतलब डिफरेंस देखते हैं गेट एंड पोस्ट के बीच में, हम्म। तो लिखता है कि ए गेट इज लेस सिक्योर अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू पोस्ट। तो ये क्यों लिखता है? क्योंकि वो मतलब सब कि कुछ यूआरएल में जाता है, वो बॉडी वगैरह नहीं है उसके अंदर, एनक्रिप्ट नहीं कर सकते डेटा को आपने यूआरएल ये से, है ना। यस सर। बॉडी में आप, और जैसे पोस्ट की बात है तो पोस्ट के संग रिक्वेस्ट प्लस बॉडी जाती है, और बॉडी में आप डेटा है वो तो आप या तो प्लेन टेक्स्ट दे दो या फिर उसको इनक्रिप्ट कर दो, तो वहाँ सिक्योरिटी आ गई आपके पास। पर जो भी आप गेट में ओके सर। दोगे वो सब कुछ आपकी यूआरएल पे विजिबल होगा। या यूआरएल पे यस सर। याद है हम जब वो लॉगिन पेज करते थे सर्वलेट जेएसपी पर, तो यस सर याद है मुझे। यूजर ने पासवर्ड सब विजिबल था। तो हाँ यूआरएल पे। तो अगर मैं थोड़ा सा एडवांस कोडिंग करना चाहूँ, तो जब मैं पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ साथ में अपने जो यूजर ने पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो प्लेन टेक्स्ट सेंड करते हो वो भी आप अपने ब्राउजर पर देख सकते हो, सिंपल ब्राउजर टूल यूज करके। वहाँ आपको सब दिख जाएगा जो भी रिक्वेस्ट सेंड करते हो, अगर आप सब कुछ प्लेन टेक्स्ट है ब्राउजर पे आप सब कुछ देख सकते हो, चाहे आपको कुछ ना दिख रहा हो स्क्रीन पर। डेवलपर्स टूल ओपन करिए, वहाँ सब दे जाएगा रिक्वेस्ट में क्या क्या गया है। सो इसलिए गेट पोस्ट में एक काफ़ी बड़ा ये मतलब है डिफरेंस। ओके, कमिंग बैक टू द एंड पॉइंट। तो डिलीट का मतलब ये कि आपको वहाँ बताना पड़ेगा कि आई एम सपोज टू डिलीट दिस रिकॉर्ड, और वहाँ पे आपको आईडी देनी पड़ेगी। तो आईडी कैसे दी जाती है वो सीखते हैं यहाँ पर। और ये बीच में क्यों छोड़ देता हूँ मैं, इसको इसको कंप्लीट करते पहले, एक सेकंड गाइस। इतना स्क्रीन रख लेते हैं इसके लिए। दिस वाज फॉर पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, गिव मी 1 मिनट। नेक्स्ट पेंट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट आ गया। फिर इसमें बॉडी नहीं दिख रही है। अरे थैंक यू, हाँ जी बिल्कुल सही कहा, बॉडी दिखनी चाहिए। यस, पोर्ट इज सपोज टू पास बॉडी। ठीक है, तो जो भी आपने रिक्वेस्ट पास करा, यहाँ पे बॉडी भी विजिबलाइज हो गई, विजुलाइज हो गई, क्या बोल रहे हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं डिलीट की। तो डिलीट में हमने बोला कि कंडीशन चाहिए, ऐसे आप डिलीट नहीं करोगे, और करना भी नहीं चाहिए, रिकॉर्ड उड़ा दोगे आप तो रिकॉर्ड का, डेटाबेस का। सो लेट्स टेक अ रेफरेंस। सो व्हेन वी से डिलीट सम रिकॉर्ड, सो दिस इज व्हाट वी डिड जब हम लोग बेसिक मैसेज को स्टार्ट किया था। ये तब का क्वेरी है स्क्रीन पर। तो व्हाट यू आर सेइंग है कि मुझे चाहिए आईडी। अब दो तरीके होते हैं आईडी पास करने के या रिक्वेस्ट पैरामीटर पास करने के। विपिन कुछ बताया था तुमने स्टार्टिंग में, क्या था वो? सर पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल, और कुछ इसके अलावा? सर पाथ वेरिएबल में हम सर आईडी दे देते हैं, और सर जहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेड एक द ग्रेड डिलीट हम्म। रिक्वेस्ट, वहाँ पे हम एक आईडी नाम से वेरिएबल देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज, ओके थैंक यू विपिन। सो क्वेश्चन इज हाउ टू पास वेरिएबल विद रिक्वेस्ट, है ना, एक वेरिएबल पास करना रिक्वेस्ट के साथ। तो मेरे पास जो अभी तक ऑर्डिनरी रिक्वेस्ट है वो इस टाइप की दिख रही है। अब मैं इसके यार आईडी कैसे पास करूँ? सो एज विपिन सेड वी हैव पाथ वेरिएबल। इसके अलावा एक और होता है, एनीवन गेस? क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। सो दीज आर टू वेज बाय विच वी कैन सेंड एनी वेरिएबल विद द रिक्वेस्ट। कैसे जाएगा वो देखते हैं। तो अगर हम पाथ वेरिएबल की बात करें तो इसमें तो जाएगा जैसे कि मेरे पास अभी एंड पॉइंट ये वाला मैंने ये पास कर दिया, देन आई विल से स्लैश और यहाँ पे मेरी आईडी, ठीक है।
मोस्ट बेसिकली अगर मुझे कैसे पास करना है, जो कोड में चलेगा, जो मैं एंड पॉइंट बनाऊंगा वो लिख दूंगा मैं आईडी, ऐसे लिख दूंगा मैं 5। तो ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट विथ आईडी 5, और ये इसका कोड है, कोड फॉर रिक्वेस्ट विद आईडी 5। ठीक है, क्लियर इतना? तो ये तो पाथ वेरिएबल हो गया कि ऐसे यूज़ करेंगे हम लोग और ऐसा काम आपका हो जाएगा। व्हाट अबाउट क्वेरी पैरामीटर? तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करिए, किसी ने ऐसा नहीं करा मतलब ये आपको पढ़ने की जरूरत है। तो ये पढ़ के आइएगा, एग्जाम्पल बना के आइएगा। ओके, सो लेट्स सी हाउ टू यूज़ पाथ वेरिएबल्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया बता दिया कि कैसे काम करता है ये। अब कोड में देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो स्लैश कर्ली ब्रेस एंड देन आईडी। अब आईडी के अलावा कुछ भी लिख दो जो आपको समझ लगे, ये एक कस्टम वेरिएबल है, जो आप नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। तो आईडी लिख लो, स्टूडेंट आईडी लिख लो, स्टू आईडी लिख लो, मैं भी आईडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। हो गया इतना। अब जो एनोटेशन जो उसको सपोर्ट करता है, इस पाथ वेरिएबल को सपोर्ट करता है, वो है एट पाथ वेरिएबल। तो अच्छी बात है कि आपको कुछ नया याद नहीं करना, अगर आपको ये नाम याद है तो आपका काम हो जाएगा, ये यूज़ करना है। ठीक है, यही गड़बड़ इसके साथ, इंटेलिजे के साथ, इसका अलग ही फॉन्ट टैग है जेट ब्रेन्स वालों का। ठीक है, सो दिस इज द, अच्छा नहीं लग रहा। Okay guys, so this is the enrichment which you have to use while implementing path variable concept. आपको पैरामीटर पास करना है या आर्गुमेंट पास करना है या वेरिएबल, जो भी समझ में है वो पास करना है अपने रिक्वेस्ट के साथ। सो पाथ वेरिएबल इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये कर लिया, एंड देन आफ्टर यू कैन से इंट आईडी, डन, एंड देन यू कैन जस्ट प्रिंट इट, क्योंकि और तो कुछ हम कर नहीं सकते यहाँ पर। और इसमें प्रिंट करते हैं SOUT, देन स्टूडेंट आईडी इज आईडी। रिटर्न कुछ करना है नहीं, चाहो तो रिटर्न कर दो इस आईडी को भी, तो मैं रिटर्न कर दूंगा आईडी, और रिटर्न टाइप चेक करके एंड कर देते हैं, क्योंकि वी नो दिस कि हम आराम से रिटर्न टाइप में काम कर सकते हैं। रिटर्न खत्म हो गया भाई, एंड पॉइंट रेडी। तो नाउ वी हैव लर्न हाउ टू पास एनी वेरिएबल विद योर रिक्वेस्ट। रीसेट करते हैं एप्लीकेशन को, स्टॉप एंड रीरन। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं जब तक, मेरे कर्सर आ गया उसके साथ। Okay, this is the endpoint. Server started. Let's go back to Postman. इसी को कॉपी कर लेते हैं endpoint को, स्लैश पेस्ट स्लैश कोई भी आईडी पास कर लीजिए क्योंकि और डेटाबेस तो है नहीं, और देन यू पिक डिलीट, एंड सिंस डिलीट डज नॉट टेक्स एनी बॉडी एंड यू आर नॉट सपोज टू पास एनी बॉडी, तो वो नहीं करते, और रिक्वेस्ट सेंड किया, आईडी 5 आ गया। अगर कंसोल चेक करेंगे तो कंसोल पे भी लिखा जाएगा स्टूडेंट आईडी इज 5। कैसे किया? सिंपल, यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा के एक वेरिएबल दे दिया, और यहाँ पे जो नाम आप यहाँ लिखोगे आईडी, सेम नाम यहाँ पे होना चाहिए, तभी काम करेगा ये। अगर आपने इस वेरिएबल नाम को चालू कर दिया तो ये काम नहीं करेगा फिर। सो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल का नाम आप यहाँ पे देखोगे, सेम नेम यू हैव टू यूज हियर एज वेल, एंड दैट्स इट, योर एंडपॉइंट विल वर्क। ये हो गया डिलीट, सिंपल हो गया। कोई और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन विद ऑल 4 बेसिक एंड पॉइंट्स। सर अगर इसमें आईडी में 5 की जगह अगर हम 1 डालेंगे हम्म, तो फिर जो 1 वाला जो वो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। बिल्कुल डिलीट हो नहीं जाएगा। सर, डिलीट हो जाएगा सर। अरे डिलीट का काम ही ए, डिलीट है, क्या हुआ? सर 1 मिनट करिए, हाँ, देखना है मुझे।
अरे तो अपने पास रिकॉर्ड कहाँ है? हम वही तो वही तो तो मतलब सर। अगर हमने अभी डाटाबेस में सेव नहीं किया है इसलिए हम उसको भी डिलीट नहीं कर पाएंगे ये ना। सर ये कह रहा हाँ। था, मेरे कहने का मतलब ये था। वही तो। अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो सब सिस्टम स्क्रीन चल रहा है। ये तो तरीका भी ये नहीं कर सर। लेगा, है ना? अभी तो हम लोग बस सीख रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट एंड पॉइंट्स। तो यस, अगर एनी मतलब एक्चुअल सीन में करेंगे तो ये डिलीट करेगा। अभी इस कोड में कुछ डिलीट नहीं होने वाला। ये सर मैं ये कहने वाला था। ठीक है। ओके। शुभम, तुम भी कह रहे थे? जैसे मैं बस कंफर्म कर रहा था सर। अभी क्या डिलीट करेगा? खुद सोचो, अभी तो तुम्हारा डेटा भी भी नहीं है। हाँ मैं क्या डिलीट? वही मैं क्योंकि हमने जैसे वन में सर एंट्री पुट करी थी ना, तब मैं अच्छा। वो कंफर्म कर रहा था बस। हाँ ठीक है, ठीक है। ओके, तो अभी के लिए ऐसे कुछ नहीं हो रहा। कहीं डेटाबेस ही नहीं है, कहीं कॉन्फ़िगर नहीं करके रखा हुआ। क्या करेगा बेचारा, ये कुछ नहीं कर सकता अभी। अभी जितने मजे लेने ले लो उसके। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम। तो व्हाट वी डिड, वी हैव पास्ड वन path variable, and then this id is passed here and the id is passed here. Then we have passed id 5, जो भी पास कर रहे हो, we are returning it as well, this id, because of this int, and it goes or comes back here. सर थोड़ा सा अपडेट वाले कोड पे चलेंगे? एक मिनट रुकिए, करते हैं। id 5, id 5 and okay, now better. Yes, अपडेट पे आगे बताइए। सर जब हम कोई चीज़ अपडेट करते हैं तो जैसे हम एसक्यूएल में लिखते हैं अपडेट के लिए भी हम एक आईडी सेलेक्ट करते हैं, उसमें फिर क्या क्या अपडेट करना वो लिखते हैं। तो सर करेक्ट। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ आपने अपडेट पुट लिखा और स्टूडेंट लिखा। हम यहाँ पे भी तो आईडी सेलेक्ट हमें करना है। आईडी में बॉडी में देता रहा हूँ मैं, क्यों खुले में देना? मैं तो दे सकते हो, टोटली सब टू यू, इट्स टोटली योर डिजाइन। आप चाहो तो ओके आईडी सर। यहाँ पास कर सकते हो और आईडी यहाँ ही पास कर सकते हो, स्लैश लगा के मैं यहाँ भी पास कर सकता हूँ आईडी। ठीक है। ओके सर। तो टोटली इट्स टोटली अप टू द डिज़ाइन। जो भी हमारा प्रोजेक्ट का आर्किटेक्ट है जिसने डिज़ाइन किया, वो बताएगा कि किस टाइप की एपीआई बनानी है, आईडी हमें एक्सपोज करनी है यूआई पे या नहीं करनी है। ठीक है। अभी आपने एक बात की तो मुझे एक इंसिडेंस याद आ गया कि आई वाज वर्किंग प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में क्या था कि हमने जैसे आईडी यहाँ पे पास कर दी थी बॉडी में। लेटर लास्ट मोमेंट पे, जब व्हेन वी वर अबाउट टू लाइव अवर कोड, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था वो, तो वहाँ पर जब प्रोजेक्ट की क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन होती है, फिर थर्ड पार्टी टूल के थ्रू जो भी सिक्योरिटी कंसर्न थे वो निकाले गए। तो उन्होंने फिर एक सजेस्ट किया, काम करिए कि आईडी आप यहाँ तो पास कर रहे हो, यहाँ भी पास करो, और जो बॉडी में जा रहा है आईडी उसको आप इनक्रिप्ट कर दो। आईडी किसी को दिखनी नहीं चाहिए बॉडी में। यूआरएल पास कर दो कि हाँ आईडी ये है, पर जब बॉडी जा रही है तो वहाँ पे कहते हैं ना कि जो डेटा इंटरप्रेशन होता है या फिर डिक्रिप्शन का काम होता है वो टफ हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी डिड, हमने आईडी यहीं पास करी और यहीं पास कर दी, और यहाँ पे कंफ्यूज करने रिक्वेस्ट टाइप को कि रिक्वेस्ट क्या जा रहा है आईडी में, वहाँ पे हमने वैल्यू को इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है। सो टोटली अप टू यू, वहाँ पे कर सकते हो। तो वो सारा करेंगे, पर अभी अपने पास बेसिकली कुछ कनेक्शन है नहीं, तो सब कुछ हम कंट्रोल पे कर रहे हैं। ओके, दिस इज डन। अभी क्या करते हैं, पैकेजेस बनाते हैं। ठीक है, अभी करते हैं एक काम, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं CRUD ऑपरेशंस का। ठीक है। कुछ लिखेंगे एस बी CRUD ऑपरेशन करके, और वहाँ पे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। तो आज थोड़ा सा फाउंडेशन डाल देते हैं प्रोजेक्ट का। सो गोइंग टू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, start.spring.io, मैविन, फ्रेश प्रोजेक्ट बना रहेगा इस मैविन पिक किया, जावा पिक किया 3.22, और यहाँ पे लिखते हैं यूज क्लाउड लगा कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, आर्टिफैक्ट का नाम आई कॉल दिस स्प्रिंग बूट CRUD ऐप। ठीक है, इस बार मैं हाइफन देके दे रहा हूँ, स्प्रिंग बूट ऐप फॉर, अरे CRUD ऑप्स। और ये आपके पैकेज का नाम होगा, लास्ट में देखिएगा जो आपका पैकेज का नाम होगा, जो रूट पैकेज उसका नाम होगा com.cloudraga.sb-crud। ये गलत लग रहा है ना, थोड़ा अजीब लग रहा है, तो उसको हम यहाँ कर लेते हैं ऐसे। आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। और पैकेजिंग जार रहेगी, इस पर ही बात नहीं करते, बाद में देखेंगे फ्यूचर में। और जावा वर्जन इज 17। तो ये सारा काम हमने कर दिया। नाउ लेट्स गो बैक टू राइट साइड, यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो पहला तो मैं ऐड करूँगा वेब, जो कि रिक्वायर्ड है रेस्टफुल पेज क्रिएट के लिए, दैट्स डन। नेक्स्ट ऐड डिपेंडेंसी करते हैं
वी आर गोइंग टू, अभी हम लोग MySQL डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, फ्यूचर में हम लोग पोस्ट का यूज़ करेंगे बिकॉज वी आर सपोज टू डिप्लॉय आवर कोड ऑन लाइव सर्वर, सो उसके लिए हम पोस्ट का यूज़ करेंगे। तो अभी MySQL का हम ड्राइवर पिक करते हैं। ठीक है, MySQL ड्राइवर पिक कर लिया। और एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी जो कि रिक्वायर्ड है व्हेन वी आर अबाउट टू कनेक्ट विद डेटाबेस। थिंक अबाउट, जब हमने स्टार्टिंग में हमने JDBC सीखा था कोड जावा का, देन वी हैव लर्न हाइबरनेट। वहाँ पे हमने एक अलग ही फ्रेमवर्क देखा जो सोली बेस्ड फॉर और क्रिएटेड फॉर डेटाबेस। तो वहाँ पे हमने चीज़ें देखी थी, थिंग्स वर सिंपल। मतलब आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी नहीं है, कुछ मेथड से उनको कॉल करना है और सारा काम हो जाएगा। राइट शुभम, याद है हाइबरनेट? यस सर। है ना? तो यहाँ भी हमें ऐसे करना पड़ेगा। हम तो एक बहुत एडवांस फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट। अगर वहाँ भी आप एसक्यूएल क्वेरी लिख रहे हो एक सिंपल टास्क के लिए, सो देन देयर इज नो मेक्स, देन इट डजंट मेक एनी सेंस कि स्प्रिंग बूट क्यों जा रहे हो, कोड जावा प्रोजेक्ट बना लो। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज JPA। याद है हम JPA से कुछ यूज़ किया था हमने, इंपोर्ट करते थे एनोटेशंस। यस सर। झूठ बोल रहे हो, याद है? सच्ची बताओ। नहीं सर, सिर्फ याद है? यही याद है, जावा पर्सिस्टेंट एपीआई हम लोगों हाँ ने यूज राइट, किया। जावा पर्सन API। तो जावा एक्स डॉट पर्सन API, वहाँ से हम एनोटेशन इंपोर्ट करते थे। एट एंटिटी, एट आईडी, एट कॉलम, एट वन टू वन मैनी, जितने भी एनोटेशन थे वी हैव पिक्ड एवरी सिंगल एनोटेशन फ्रॉम दिस API। तो ये रहा वो, क्या लिखा हुआ इस पर? persist data in SQL stores with Java Persistence API using Spring Data and Hibernate। ये रहा वो। तो JPA के बहुत सारे implementation, JPA is a standard। गाइस रिमेंबर दिस थिंग, JPA इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ हाइबरनेट में, नहीं पता तो हाइबरनेट वाली क्लास में जाकर देख लीजिएगा। JPA इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड एंड देयर आर मल्टीपल फ्रेमवर्क्स व्हिच implements दैट स्टैंडर्ड। तो हाइबरनेट भी फॉलो करता है JPA को। स्प्रिंग बूट है, उसका एक मॉड्यूल है स्प्रिंग डेटा, वो भी इम्प्लीमेंट करता है JPA को। तो JPA स्टैंडर्ड और ये बाकी फ्रेमवर्क उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही काम कर रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो। तो आई थिंक इतना इनिशियली बहुत है। हमारे पास वेब की लाइब्रेरी हो गई, MySQL की हो गई, स्प्रिंग डेटा की हो गई, और बस जनरेट करते हैं फिर। बाकी सब ठीक लग ही रहा है। लेट्स जनरेट। तो हमें एक प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा और इसको मैं रैप प्रोजेक्ट पे सेव करता हूँ सीधा। सेशन पैच दिस स्प्रिंग बूट, यहाँ बनाते हैं इसको सेव। ठीक है, प्रोजेक्ट आ गया अपने पास स्प्रिंग बूट के अंदर। ये रहा, इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। ये आ गया, इसमें इसको कट करके पीछे जाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ताकि रूट पे रहे हम लोग। रूट मतलब खुलते ही प्रोजेक्ट पे ये मिल जाए। ओके, सो दिस इज एप्लीकेशन, ग्रेट। अब इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं IntelliJ पे। सो वी आर लर्निंग हाउ टू इंपोर्ट स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन ऑन IntelliJ। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सो एग्जिस्टिंग सर्वर है, इसको स्टॉप कर देते हैं पहले, पुराना प्रोजेक्ट है। अब फाइल ओपन, देन लुक आउट फॉर प्रोजेक्ट। ये रहा स्प्रिंग बूट का फर्स्ट एंड देयर इट इज। स्प्रिंग बूट का एक्सटेंड कर देख लो कि हाँ वही है। प्रोजेक्ट के नाम पे क्लिक कर देना बस एंड देन से ओके। सो IntelliJ is always suspicious about your project, so you can say yes, I trust this project and trust project। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस विंडो और न्यू विंडो, अगर आप दिस विंडो करोगे तो ये पुराना प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा और नया प्रोजेक्ट नए स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे मल्टीपल टैब्स ओपन करते हैं ना, जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अगर मैं एक और यहाँ पे स्क्रीन बना लूँ तो अब इस पर क्लिक किया, मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, राइट। और ये प्रोजेक्ट मान लो डायरेक्टरी फोल्डर इसका है, तो पहले इस पे ये ऐप पे जाएगा, ये स्प्रिंग बोट के फोल्डर पे जाएगा। लाइकवाइज इट विल क्रिएट टू इंस्टेंसेस ऑफ IntelliJ। तो मैं कहूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं दिस विंडो कर लूँगा। तो ये पुराना प्रोजेक्ट क्लोज और इस पर नया प्रोजेक्ट आ जाएगा जो मैंने अभी जस्ट बनाया है स्प्रिंग इनिशियलाइजर साइट यूज़ करके। तो ये इसको रीड कर रहा है। कोई अगर नई लाइब्रेरी होगी उसको डाउनलोड करेगा लोकल रिपोजिटरी पे, मतलब हमारे C ड्राइव में एक लोकेशन बनता है .m2 फोल्डर जहाँ पे मैवन की लाइब्रेरी जाती है, वहाँ जाके इसको सेव करेगा। और ये ऑलरेडी डाउनलोड में लगा हुआ है क्योंकि दो लाइब्रेरी मैंने नई पिक करी है इस प्रोजेक्ट के लिए, एक है JPA, दूसरा है MySQL। तो जो भी लाइब्रेरी नहीं मिल रही है वो सब डाउनलोड करेगा एंड देन इट विल सिंक अप योर प्रोजेक्ट। ओके, आ गया। बिल्ड चेक कर लेते हैं, तो सिंक आ गया एट 1:26 1:49 PM, है ना? टाइम मैच कर रहा है, 1:49 PM हो रहा है। तो प्रोजेक्ट भी बिल्ड हो गया, दैट्स गुड। प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करते हैं। सेम स्ट्रक्चर है, कोई नया नहीं मिलेगा। अगर आपने पुराना प्रोजेक्ट देखा हो तो सेम मिलेगा। और स्प्रिंग बूट क्रड ऐप इसको चेंज कर लेते हैं, ये वापस से वही आ रहा है। ये ध्यान नहीं रहा, वहीं कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं, एक ही बात है। रिफैक्टर करा,
और यहाँ से ये ऐप हटा के एप्लीकेशन कर लेते हैं, स्प्रिंग बूट क्रड एप्लीकेशन रिफैक्टर। ओके, ठीक है, चेंज हो गया, बेटर। और लेट्स सी द पॉम फाइल। अब पॉम फाइल में चीज़ नोटिस करिएगा इस, व्हेन वी वर डूइंग मेमन प्रोजेक्ट्स इन हाइबरनेट, तो वहाँ हम लोग वर्जन मेंटेन करते थे, राइट, कि किस वर्जन को पिक करना है इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये रहा जेपीए का डिपेंडेंसी, ये रहा वेब का डिपेंडेंसी, एंड देयर इट इज माईएसक्यूएल। एंड इफ यू हैव नोटिस, यहाँ पे वर्जन का इशू ही नहीं है, बिकॉज हमने स्प्रिंग बूट का वर्जन दे दिया 3.22। तो ये क्या करेगा, इसके कंपैटिबल जितने भी लाइब्रेरी चाहिए होंगी, इधर जेपीए, वेब, माइस्क्यूल कनेक्टर, फ्यूचर मैम, यूरिका सर्वर वगैरह इंस्टॉल करेंगे, वो सब के सब ये लेके आ जाएगा कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। तो अगर आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये अपने आप ही उन चीज़ों को लेके आएगा, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगाना इन चीज़ों पर। ठीक है, तो लाइब्रेरी भी आ गई, ये भी आ गया, प्रोजेक्ट इज रेडी। एक बार रन करके देख लेते हैं। लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बना, एक बार रन कर गया था, ट्राई करते हैं रन होता है कि नहीं होता। तो राइट क्लिक, रन एप्लीकेशन। ओके, कंसोल टर्मिनल पार्स कर रहा है प्रोजेक्ट को। ओके, क्या आ गया यहाँ पर? अच्छा, ये वो जावा का इशू फिर से आ गया, इसको चेंज कर लेते हैं। मॉड्यूल सेटिंग्स, प्रोजेक्ट पे गए, यहाँ पे इसका चेंज करा टू 17, क्योंकि 70 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। अप्लाई एंड देन ओके। लेट्स ट्राई अगेन, रन करा प्रोजेक्ट को। स्प्रिंग बूट का सर्वर स्टार्ट हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, जावा का वर्जन शो कर रहा है, पाथ लोकेशन नोट कर रहा है, 80 किया, और फिर आ गया एप्लीकेशन फेल टू स्टार्ट। ओके, unsatisfied dependency through data source scripted database initializer parameter, creating bean with this name and defining this class, and कुछ fail to determine a suitable driver class। तो कुछ ऐसा इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं कर पा रहा है ना। क्या बोल रहा है, fail to determine a suitable driver class, डेटा सोर्स का यूआरएल नहीं है। हो क्या रहा है गाइज, हमने लाइब्रेरी में जो पॉम फाइल है, यहाँ पे एक लाइब्रेरी देख रखी है माईएसक्यूएल, प्लस हमने बताया कि हम स्प्रिंग बूट डेटा जेपी यूज़ करने वाले हैं, स्प्रिंग डेटा जेपी कहते हैं जिसको। अब जैसे ही स्प्रिंग बूट को ये डिपेंडेंसी दिखती है, स्प्रिंग बूट चेक करता है कि क्या आप लोगों ने डेटाबेस कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। अगर आप ये लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हो स्प्रिंग डेटा जेपी और माइस्क्यूल की, तो आप लोगों को डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो ये ढूंढेगा, क्योंकि आपने लाइब्रेरी देख रखी है। मैं काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी सिर्फ जेपी कमेंट करते हैं, ठीक है। फिर से एप्लीकेशन करते हैं, रन करें एप्लीकेशन, बिल्ड हो रहा है। ओके, स्टार्ट हुआ सर्वर। ओके, अब बोल रहा है कि फेल टू डिटरमाइन सुटेबल ड्राइवर क्लास। ड्राइवर क्लास आपको याद होगा कि जावा मतलब डेटाबेस के टाइम यूज होता है। एक काम करते हैं, ये बिट कमेंट कर देते हैं। तो अब जेपीए और माइसिको मतलब जो भी लाइब्रेरीज डेटाबेस से रिगार्डिंग कनेक्टेड थी, वो हमने कमेंट आउट कर दी। अरे ये वो बिल्ड भी चलाना था, ये ना लाइब्रेरी कमेंट करो तो ये हटाना पड़ता है। मैंने बिल्ड ये मिस हो गया मेरे से। तो ये कर देते हैं एक बार, ताकि इसको पता लग जाए कि लाइब्रेरी हट चुकी है। ओके, इट्स डन, लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर। ओके, सो इफ यू कैन सी, अब सर्वर स्टार्ट हो गया। टॉम का स्टार्ट अराउंड 8080 पोर्ट, इतने सेकंड में स्टार्ट भी हो गया, 5 सेकंड्स में। इशू क्या था कि आप लोगों ने एक डिपेंडेंसी या एक लाइब्रेरी देख रखी है, एंड दीज लाइब्रेरीज आर यूज्ड टू कनेक्ट योर एप्लीकेशन विद डेटाबेस। और अगर ये करना है, डिपेंडेंसी यूज करनी है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर पासिंग और कॉन्फ़िगरिंग योर Spring Boot application to connect with
MySQL डेटाबेस। अगर ऐसा नहीं करते हो तो प्रोजेक्ट स्टार्ट ही नहीं होगा। ये पहला स्टेप है लर्निंग कि जब डेटाबेस कनेक्ट कर रहे हैं आप स्प्रिंग बूट से, तो अगर ये लाइब्रेरीज आप प्रोवाइड करा रहे हो तो मेक श्योर यू हैव अ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन। वो आज नहीं, हम कल करेंगे। अभी मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कि कैसे बनेगा वो समझाते हैं। तो मैंने वापस इनको अनकमेंट कर दिया है, वेबन के थ्रू उसको बिल्ड कर दिया है। तो अगर ट्राई करूंगा तब ये सर्वर प्रोजेक्ट चलेगा नहीं, सेम इशू आएगा, क्योंकि वो सर्च कर रहा है कि ड्राइवर क्लास दो, यूआरएल दो, डायरेक्ट बताओ कौन सा डायरेक्ट यूज कर रहे हो, वो सब तो बताया नहीं आपने। तो स्प्रिंग बूट चलेगा नहीं क्योंकि इसको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए डेटाबेस की। तो वो हम बाद में करते हैं, फिलहाल ये चलेगा नहीं। अभी हम बात करते हैं, लाइब्रेरीज हमने स्टोर कर रखी है इसमें, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, सर्वर नहीं चला, ओके एज एक्सपेक्टेड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या लाइब्रेरीज यूज़ करें। हमने हमने यूज़ करी ये लाइब्रेरीज, स्प्रिंग बूट ऐप विद MySQL डेटाबेस। ठीक है, तो स्टेप 1 इज create shortcut from Spring Boot app from that site. Okay, step 2, add dependency in project. Your libraries हैं, and that website is this. Okay, so इतना हमने कर लिया। नेक्स्ट, अभी हम डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन बाद में करते हैं। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू कि प्रोजेक्ट की जो स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर वो कैसा बनाएंगे। तो ऑलरेडी वी हैव ऑल दिस स्टफ्स, इतना सब दिख रहा है, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि एज ऑफ नाउ वी हैव दिस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, है ना। इसको हमें चेंज करना है। चेंज इन द सेंस मतलब इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे, चीज़ें ऐड करेंगे, ताकि वो प्रॉपर हम एक MVC पैटर्न बना सके। अभी तक जो भी हमने लास्ट हैंड पैड बनाए थे वो सारे सारे कंट्रोलर पे जा रहे थे, बट नाउ द टास्क इज कि अब हमें एक प्रॉपर डेटाबेस कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ पैकेजेस बनाने पड़ेंगे। तो इफ़ यू गाइस रिकॉल, वी हैव डन समथिंग। स्प्रिंग वापस पे जा रहा हूँ मैं। इस किधर गया वो, स्प्रिंग बोट में था। दिस फ्लो। तो यहाँ पे हमारे पास क्लाइंट था, फिर कंट्रोलर, सर्विस, डाओ, पोजो एंड एंटिटी क्लास। तो आई फोकस ऑन कंट्रोलर, सर्विस, डाओ फॉर नाउ एंड एंटिटी। मतलब अभी जो बताना चाह रहा हूँ उसमें ऐड करते हैं। तो पेंट 5 पे जाते हैं। सो वी हैव टू क्रिएट कंट्रोलर, जो कि हमने देखा अभी। कंट्रोल क्रिएट करेंगे, देन वी विल क्रिएट सर्विस, देन विल क्रिएट DAO लेयर और डाओ लेयर, एंटिटी, एंड देन फाइनली पोजो क्लास और DTO क्लास। ठीक है, ये क्लास, ये चीज़ हम क्रिएट करने वाले हैं। एंड व्हाट दीज थिंग्स आर एक्चुअली, दीज आर पैकेजेस। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम पैकेजेस क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इनको फिल करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे दिखेगा, लेट्स क्विकली डू दैट। तो क्या करना है, राइट क्लिक ऑन योर रूट पैकेज। ये हमारा रूट पैकेज है, इसलिए मैंने वहाँ से वो हाइफन हटा देते थे। जो भी आप एप्लीकेशन का नाम देते हो उस साइट पर, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पैकेज का नाम हो जाता है। तो उसको चेंज कर दिया हमने, एंड देन न्यू, देन पैकेज, यहाँ लिखेंगे पहले हम कंट्रोलर। ठीक है, एंटर, डन। नेक्स्ट पैकेज आई विल क्रिएट डॉट सर्विस, डन। देन आई विल क्रिएट न्यू पैकेज डाउ, और रेपो भी कह सकते हो, रेपोजिटरी भी कहते हैं कई बार इसे, अप टू यू, कुछ भी कह लो। देन एंटिटी, और आई कॉल दिस मॉडल, क्योंकि एंटिटी इज अबाउट हाइबरनेट, तो हम इसको मॉडल कहेंगे। मॉडल और एंटिटी, मैं DTO को पहले देता हूँ क्योंकि आई एम गोइंग टू यूज DTO लेयर।
मॉडल पैकेज हो गया, देन पैकेज DTO। सो वी हैव 5 पैकेजेस नाउ। इनमें हम धीरे धीरे कोड डालना स्टार्ट करेंगे आराम से, आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में। सर हम रिपोजिटरी किसे कह रहे थे? ओके, इसको डाको। ओके सर। रेपो और रिपोजिटरी। So now we have changed our project structure. Now it looks like something like this after adding these packages in our code. और फ्लो में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ इसको। फ्लो इज दिस वन, कंट्रोलर से सर्विस, कंट्रोलर सर्विस से सर्विस डाउ, डाउ। रिपोजिटरी, फिर एंटिटी क्लास, वापस रिटर्न होगा कंट्रोलर, पोजो क्लास या जो DTO ले रहा है उसे इंटरेक्ट करेगा और रिटर्न कर देगा। और बीच में डाउ इज डेफिनेटली इंटरेक्टिंग विद डेटाबेस एज वेल, है ना। तो फ्लो ये रहेगा। तो जो हम क्लासेस बनाएंगे उनमें कॉल्स करेंगे, एनोटेशंस यूज़ करने वाले हैं बहुत सारे नए नए, तो चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेंगी। सो तुम्हारे क्लास में थोड़ा सा अब जितना मैंने अभी तक मैंने आप लोगों को जो बात करी, ऑल इज लाइक अ थ्योरेटिकल पास, राइट। थोड़ा बहुत कोडिंग करी है, बेसिक कॉल्स करे हैं, पर मोरलेस इट वाज थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्लास से कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। कोडिंग में एफर्ट लगेंगे मेरे भी और आप लोगों के भी। तो अभी तक जितना मैंने ये कर लिया वो कर लिया नहीं, अब सब कुछ करके आना है, वरना मत आना, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब नेक्स्ट क्लास में इन क्लासेस को फिल करते हैं, एंड पॉइंट्स बनाएंगे। और एंड पॉइंट्स का एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया होगा इस पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। तो ओपन रिसेंट फर्स्ट ऐप और मैं कर दूंगा न्यू विंडो। तो मेरे पास दोनों प्रोजेक्ट ऊपर जाएंगे, देखो ये अभी का, ये फर्स्ट ऐप, एंड दिस इज एप्लीकेशन। सो इफ यू हैव नोटिस द एंड पॉइंट्स वर, अगर हम फोकसिंग ऑन दिस कि इधर इट कुड बी, अभी अपडेट नहीं कर पा रहा, जब नेमिंग कन्वेंशन की बताती एंड पॉइंट्स की, सो थिंग्स रिमेन सेम, प्लूरल में रहेगा वो। यू हैव टू डिफरेंशिएट देम बाय यूजिंग HTTP वर्ब। आई गॉट क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली कि सर हमें या फिर सिस्टम या फिर जो ये सर्वर है इसको कैसे पता, हम तो हर बार स्टूडेंट स्टूडेंट कॉल कर रहे हैं। आप लोग बताइए, चलो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि स्प्रिंग बूट को कैसे पता चल रहा है, या फिर टॉमकैट अपाचे को कैसे पता चल रहा है कि मुझे वही कॉल करना है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं तो स्टूडेंट्स ही कॉल कर रहा हूँ हर बार। सर एनोटेशन से। एनोटेशन से, राइट। जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं, एचटीटीपी वर्ब यूज़ कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है इसको कि वी आर रिक्वेस्टिंग व्हाट। तो हियर इट इज़। तो सबके नाम सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द रिक्वेस्ट टाइप। HTTP वर्ब के रिक्वेस्ट टाइप के यहाँ पे गेट है, यहाँ पोस्ट या पुट मैपिंग, और सब में सिमिलर क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट स्टूडेंट्स। तो ऐसे रखिएगा। इवन जो नॉन टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं उनको भी मैंने डील किया है। हुआ क्या था कि वी वर वर्किंग प्रोजेक्ट और डेमो था प्रोजेक्ट का। सो दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू टेक्निकल ट्राई स्टार्टिंग सम टेक्निकल क्वेश्चन कि ये एंड पॉइंट ऐसे क्यों लिख रखा है। अगर यहाँ पे आप गेट करो लिखो यहाँ पे गेट स्टूडेंट, यहाँ पोस्ट तो लिखो यहाँ पे क्रिएट या सेव स्टूडेंट। मैंने कहा वो मेथड्स के नाम है वो, पर जब व्हेन इट कम्स टू रेस्ट एपीआईज इट गोज लाइक दिस वे। तो यू शुड नो कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस। दिस इज सम रेस्ट एपीआई स्टैंडर्ड्स और दिस इज हाउ वी डू इट। सो जो मेन नेमिंग कन्वेंशन है वो प्लूरल में जाते हैं वो, और बाद में हम लोग और भी चीज़ें सीखेंगे। अभी ये बस बेसिक्स है कि एंड लिख दिए, और वी हैव लर्नड कि पाथ वेरिएबल कैसे पास करते हैं। तो आप लोगों को क्वेरी पैरामीटर दे रखा है मैं टास्क में, उसको करके आइए, प्लस एक नया प्रोजेक्ट बनाइए सेम स्प्रिंग बूट के ऊपर, और अपने एंड पॉइंट बनाइए, कुछ भी नया करके लाइए, आई डोंट केयर, पर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टास्क इज, पहला है क्वेरी पैरामीटर, दूसरा फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाइए, क्रिएट अ न्यू स्प्रिंग बूट ऐप, ऐड ऑल 5 एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, गेट वन रिकॉर्ड, ऑल रिकॉर्ड, पोस्ट, पुट, डिलीट। आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना है कि करना है क्या इसमें। पहले तो गेट एपीआई में पहले गेट में एक रिकॉर्ड आएगा, दूसरे में सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, पोस्ट में सेव रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड एंड डिलीट। अभी डेटाबेस से इंटरेक्टिंग करना है, जैसे मैंने किया हार्ड कोडेड वैसे करना है, बस मैसेज शो होना चाहिए कि आपने क्या परफॉर्म करा है। टास्क क्लियर है।
सर इसमें ऑल रिकॉर्ड्स में तो सर एक ही लिस्ट आएगा, रिकॉर्ड। लिस्ट आएगा ना फिर। ओके समझ गया सर। समझ गए? एक में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो, अगले में पूरे 5 और ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। यस सर। अच्छा, इसी में अपनी आईडी दे दे मेरे को, थोड़ा आपका होमवर्क और बढ़ा देते हैं। इसमें रिटर्न कलेक्शंस ऑफ प्रिमिटिव्स, ठीक है। प्रिमिटिव्स हो गया फिर, देन रिटर्न कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो भी आप डीटीओ पिक करोगे, जैसे हमने इस प्रोजेक्ट में एक डीटीओ क्लास पिक किया था स्टूडेंट का, src java dto, तो ये था कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ, और एक जगह मैंने रिटर्न किया था लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रिमिटिव्स। तो ऐसे कुछ करिए आप लोग भी, तो खुद के एंडपॉइंट बनाओ ताकि दिमाग में चीज़ें डेवलप हों धीरे धीरे। रिपीट ही करना है अलग एग्जांपल के साथ। स्टूडेंट की जगह टीचर कर लो, एम्प्लॉय कर लो, पर्सन कर लो, यूज़र कर लो, जो समझ में आए कर लो, बट डिफरेंट होना चाहिए। बिल्कुल नया स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाओ, प्रैक्टिस करो दो चार बार नई चीज़ों की, और डेफिनेटली पाथ वेरिएबल यूज़ करो। अच्छा, पाथ की बात आ गई तो यूज़ पाथ वेरिएबल हियर एज वेल। ओके, फैचिंग वन रिकॉर्ड, ठीक है। तो पाथ वेरिएबल में बताओ कि मुझे आईडी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 100 चाहिए, और उसके बेस पर रिकॉर्ड आ जाए। तो अभी डेटाबेस अपने पास है नहीं, तो सब कुछ हार्ड कोड कर दो, बस मुझे एंड पॉइंट चलता हुआ दिखना चाहिए कि रिक्वेस्ट करा पोस्ट 1 पे और ये पे चल गया। तो ये करने के बाद आप लोगों को कलेक्शन क्रिएट करना है और मुझे सेंड करना है ग्रुप चैट पर। 1 to 1 नहीं, ग्रुप चैट पर आना चाहिए। कब? 2 दिन छुट्टी आप लोगों की, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को मिलेंगे। तो संडे को मुझे सेंड कर देना, मंडे का वेट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि संडे का टाइम नहीं मिलने वाला। संडे को दोपहर तक मेरे पास आ जाना चाहिए, ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कितने के लिए, ओके सर। है ना। ओके सर। ठीक है गैस, तो फिर मिलते हैं मंडे को। एंजॉय योर वीकेंड।